Hi friends, welcome back to the Brilliancy Point. This is the second part in the video where we were learning how to calculate cash flow statement, right? So in this video, I'll explain you cash flow from investing and financing activities. So let us begin this video without any further ado. So as I told you that in cash flow from operating activities, we are following the indirect method. And the reason is because there are a lot maybe there are innumerable number of operating activities for an organization, and that is why we follow the indirect method because it is more convenient. So what we do, we take the net profit from the statement of P&L and we remove all the non-operating and non-cash items from there. Okay, but when we come to cash flow from investing activities or financing activities, we follow the direct method, right? Which means that we simply add all those items which lead to an inflow of cash and we subtract all those items which lead to an outflow of cash. Okay, so it is very simple to understand. So as you can see, what all items will we add? We will add proceeds from sale of fixed asset. If we are selling any fixed asset, so whatever proceed we get, we'll add it. We'll add proceed from sale of investment or from sale of intangible assets like patents, goodwill, etc. And we will also add interest and dividend that we receive on our investments. Now, one interesting and important point to note here is that it is not necessary that you will be specifically given this line that interest received on investment was this much. It is not necessary. If you are given with some specific details about the investment, like if you are in the balance sheet or in the trial balance, if you are given with the items like 12% investments or 10% investments, means the rate of interest is specified, then it is by default, it is assumed, it is an assumption that you have received that interest. Okay, so whether or not you are given this line that interest was received or was not received on investment, you have to consider that it has been received. Okay, so you have to by default consider, find out the 12% of the opening balance of investments, and that would be the interest received on investment. And again, it will have two effects. As I told you, this interest on investment, it is a non-operating income, right? It is your income from investment, not from the operations. So you will have to subtract it from the NPBT, right? And you will also have to add it here in cash flow from investing activities. So this was a very interesting point. So after that, rent. Rent also you receive on your land or on your building. So that is again an investment income and you add it here in investing activities. And then purchase of fixed assets, purchase of investment and purchase of intangible assets. All these items are subtracted, which means you have to put them in a bracket and you have to subtract it. So you will get the net cash flow. Okay. Now, it might sound very convenient and easy, but you won't be given with the information directly. Okay, whenever you have to find cash flow from investing activities, maybe you are not directly given with the information. Okay, and even in cash flow from operating activities, some information might be missing and you need to find them out. For example, whenever any sort of fixed asset is given, okay, and you are given with its opening and closing balance, and in the adjustments you are given with certain adjustments like one machinery of cost this much and book value this much, it was sold at this price, okay, or for a profit of this. So you need to use this information, you need to prepare the account for that fixed asset, and then you need to find the balancing figure. So I'll show you how to do that. So let's say you are given with plant and machinery. Okay, so you will be given with the opening and closing balance for sure in the balance sheet. So since plant and machinery, it's an asset, it will have a debit balance. So you'll write to balance brought down, and the closing balance will go on credit side by balance carried down, and you will write the opening and closing balance respectively. Then
you will be given with one more information. As I told you that you are always given with three pieces of information, and whenever you are given with three pieces of information, you have to prepare account. Okay, you have to prepare a ledger account for that item. So here you will be given with opening balance, closing balance, and you will be given some details about the sale of, sale of some part of the plant or machinery. Okay, now here you can be given information in different ways. Okay, first of all, just check if there is accumulated depreciation or provision for depreciation account, that is closing and opening balance of accumulated depreciation or provision for depreciation, is it given in the question? Look, if the opening and closing balance for accumulated depreciation is given, it means that accumulated depreciation method is being followed by the company. And if the opening and closing balance of accumulated depreciation or provision of depreciation, that is the same thing, if that is not given, it means that the company follows simple method of depreciation, right? So how do you need to use this information? Let's see. You'll write the opening and closing balance. After that, whatever you are given with, like a machinery costing 1 lakh, okay, and the accumulated depreciation thereon was 20,000. Now, this information which you are given in the sentence, that a machinery costing 1 lakh, in bracket you will be given that accumulated depreciation thereon was 20,000. So this thing is given to you because you need to find the book value, that what was the value of the machinery on the date of sale, because the cost of machinery is the original cost at which you bought it, but book value you are not given with. Okay, so you will subtract 20,000 from 1 lakh, so 80,000 will be the book value, and then maybe it will be written that it was sold for say 70,000, so that 10,000 will be the loss on sale, or if it was sold for 90,000, then 10,000 will be profit on sale. Or maybe they will give you information like a machinery costing 1 lakh, accumulated depreciation thereon being 20,000, it was sold at a loss of 10,000. Then what will be the selling price? It will be 70,000. So the selling price means the price at which you are selling, whether you are selling at loss or profit. The the price at which you are selling, that will be the inflow of cash, right? Because that will be the amount of cash which you are receiving, which you are actually getting. Okay, so that selling price will come here by bank account. That will be the selling price. Okay, and once you write this opening balance, closing balance, and the selling price, then you need to also give effect to the profit or loss. If there is profit on sale, then profit on sale is a gain for the company, so it is credited, right? So it will come on this debit side. Like let's see in investments account. Here, to profit on sale. Okay, you will write the profit. And if there is loss, then you will write on the debit side by loss on sale. And that amount will come. And then you will get a balancing figure. Always remember, if depreciation is not directly given to you in the question, the balancing figure that will come will be depreciation. Okay. Now you might get confused that accumulated depreciation was given. Now don't get confused. What I told you, if the opening and closing balance for accumulated depreciation is given in the balance sheet, then only you will consider that accumulated depreciation method is being followed. Okay, when you are given with the adjustment, and in the adjustment you are given in the bracket that accumulated depreciation thereon was itna, so that is given only for you to find the book value of the machinery or the part of machinery that you sold. Okay, so you don't have to consider that accumulated depreciation anywhere else. It is not the depreciation charged during the year, or it is not the depreciation expense for the year which you debit to P&L account. No, it is not that.
Okay, It is just that they are giving you the cost of the asset and the depreciation till now so that you can find the book value. Or alternatively, what may happen is you will be given with this adjustment for selling. Okay, which I told you earlier that the machinery of cost this much was sold at a loss or profit of this much. This you will be given, and a separate adjustment will be given for depreciation. You will directly be given this line that depreciation charged during the year was 20,000 or any amount. In that case, you will have to write depreciation here by depreciation account. You will write that amount as is done in this question. In this question, depreciation was directly given in the adjustment. So you wrote that depreciation, and then maybe the selling price was not given to you. So whatever balancing figure you will get, it will be the selling price. Okay. Or it might also happen that selling price is also given to you, depreciation is also given to you. Then what will happen is, then you will get a balancing figure as you can see in this investment account. Then you will get the balancing figure on the debit side. And when you get balancing figure on debit side, it is the purchase of that particular asset, whether it is investment or plant, whatever account you are preparing, it is the purchase of that asset. Why? Because if it is coming on debit side, it means that that asset account is being debited, which means that that asset is increasing, and it can increase only if you are purchasing new. Okay, so you will write to bank account. It will be the balancing figure, and that will be purchase. So you will have to prepare accounts like this. Okay. So if you are directly given with depreciation, okay, then you will not need to prepare this account for finding operating activities. But if you are not given with depreciation in the question and you need to find depreciation as a balancing figure, then you need to prepare this account. Okay. And whatever the case be, if you have to find cash flow from investing activities, then you need to prepare the account, because you might either get a balancing figure on credit side for selling or for depreciation, or you can also get a balancing figure on debit side for purchase. And purchase and sale of asset you need to consider for investing activities. Okay, so this is more important for investing activities. So this is how the two activities or certain items, they are connected with two or more of the activities. So you need to keep in mind this thing. Okay, now these two accounts, I hope you understood them, and these two accounts are prepared when simple depreciation method is followed, right? Now what if you are given with the opening and closing balance of accumulated depreciation? It means that you are following accumulated depreciation method, right? So in that case, what happens is, in that case, we don't charge depreciation to the asset every year. I hope you remember what you studied in grade 11th, that when we follow accumulated depreciation method, it means that we are accumulating the depreciation every year, which means that we are showing our asset on its cost. Okay, and we are not charging the depreciation to the asset account every year. We are uh, charging the depreciation into a separate account. Okay, we are accumulating, हम इकट्ठा कर रहे हैं वो depreciation को, ठीक है? और वो depreciation को हम इकट्ठा करते 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 हैं, लेकिन अगर हम कोई मशीनरी बेच रहे हैं, तो उस टाइम पे हमको देखना पड़ता है कि आज तक इस पे एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कितना था। ओके, टू फाइंड कि बुक वैल्यू कितनी है इसकी, या फॉर ऑल दैट थिंग्स। तो इसीलिए जब भी हम मशीनरी को सेल करते हैं ना, तो उस टाइम पे ही हम वो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को चार्ज कर देते हैं एसेट अकाउंट में, ठीक है, उस पर्टिकुलर मशीनरी के लिए। ठीक है, जिससे कि हम उसको बेच पाए, तो हमें पता चले कि हमें कितना लॉस है, कितना प्रॉफिट हुआ। ठीक है, इसको और एक तरीके से समझते हैं कि सपोज अगर आप सिंपल मेथड फॉलो कर रहे हो डेप्रिसिएशन की, तो आपकी एंट्री क्या हो जाएगी डेप्रिसिएशन की? एंट्री हो जाएगी डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू दैट पर्टिकुलर एसेट अकाउंट। ओके, नाउ if you are following accumulated depreciation method, what are we doing? We are not charging depreciation to the asset, we are charging it to a separate account known as
एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट। तो एंट्री क्या हो जाएगी, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट। लेकिन अगर हम कोई मशीनरी बेच रहे हैं तो उस टाइम पे हमको रिवर्स करना पड़ेगा। रिवर्स इन द सेंस हमें वो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को उस एसेट पे चार्ज करना पड़ेगा। तो एंट्री क्या हो जाएगी, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट अकाउंट, राइट। तो वही चीज हम यहाँ पे करते हैं, ठीक है। हम यहाँ पे दो अकाउंट बनाएंगे। सबसे पहले हम बनाएंगे एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट। पहले एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट बनता है, क्यों, क्योंकि देखो आपको ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस गिवन रहेगा। तो आप एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट जो है उसमें ओपनिंग बैलेंस आपका क्रेडिट साइड पे आएगा, क्योंकि ये एक तरीके से प्रोविजन है और प्रोविजंस का हमेशा क्रेडिट बैलेंस होता है। तो आपका आ जाएगा बाय बैलेंस बीडी, उसमें आप ओपनिंग बैलेंस लिखोगे, फिर आप क्लोजिंग बैलेंस लिख दोगे टू बैलेंस कैरी डाउन में डेबिट साइड पे। उसके बाद जो मशीनरी का पार्ट आप बेच रहे हो आपको गिवन रहेगा वो एडजस्टमेंट में, नो डाउट आपको गिवन रहेगा कि उस पे आज तक का एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कितना था। मतलब सेम थिंग जो मैंने आपको ऊपर फर्स्ट केस में जो मैं आपको एग्जांपल बोला था कि एडजस्टमेंट में दिया था, अ मशीनरी कॉस्टिंग रुपीज 1 लाख in bracket accumulated depreciation thereon being 20,000 was sold for 70,000 let's say, ठीक है। और अगर आपको accumulated depreciation का ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस दिया हुआ है बैलेंस शीट में, तो इस केस में हम मानेंगे कि accumulated depreciation मेथड फॉलो हो रही है। तो हमें accumulated depreciation मेथड हमें accumulated depreciation अकाउंट प्रिपेयर करना पड़ेगा। तो हमने ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस लिख दिया, प्लस वो जो ब्रैकेट में था कि accumulated depreciation thereon being 20,000, इसका मतलब क्या है कि ये जो accumulated depreciation है आज तक का, ये हमारा मशीनरी पे चार्ज हमने अभी तक किया नहीं है वो अकाउंट पे, ठीक है। वो एक्यूमुलेट हो गया है लेकिन हमने उसको हर साल चार्ज नहीं किया। तो हम वो 20,000 को यहाँ लिख देंगे टू प्लांट एंड मशीनरी, ओके, और टू दैट पर्टिकुलर एसेट अकाउंट वो 20,000 हम यहाँ डाल देंगे, ठीक है। क्योंकि अभी हम बेच रहे हैं तो हमको जरूरी है उसका ट्रीटमेंट करना, तो यहाँ पे हम डेबिट कर देंगे वो अमाउंट 20,000। और फिर जो हमें बैलेंसिंग फिगर मिलेगा क्रेडिट साइड पे वो डेप्रिसिएशन रहेगा। तो कहने का मीनिंग ये है कि यहाँ पे जो हमें डेप्रिसिएशन मिलता है ना वो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट में मिलता है। क्यों, क्योंकि हम हर साल मशीनरी में तो चार्ज ही नहीं कर रहे हैं ना डेप्रिसिएशन, तो हमें मशीनरी अकाउंट में तो मिलेगा ही नहीं डेप्रिसिएशन, हमें एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट में मिलेगा। और अगर वही चीज वही सेम एडजस्टमेंट अगर हमें दिया होता जो मैंने आपको ऊपर बोला कि ये सेम एडजस्टमेंट दिया रहता कि मशीनरी कॉस्टिंग 1 लाख accumulated depreciation thereon being 20,000 was sold for 70,000, ठीक है। लेकिन हमें accumulated depreciation मेथड का ओपनिंग और क्लोजिंग नहीं दिया है। इसका मतलब क्या है, सिंपल मेथड फॉलो हुई है डेप्रिसिएशन की, और वो जो हमें ब्रैकेट में accumulated depreciation की इंफॉर्मेशन दी है वो सिर्फ और सिर्फ ये फाइंड करने के लिए दी है कि हमारा जो है प्रॉफिट या लॉस कितना है। अब जैसे कि आपको दिया है कि 1 लाख की कॉस्ट थी, 20,000 का accumulated depreciation है और 70,000 में बेची, ठीक है। तो आपको प्रॉफिट या लॉस निकालना है तो उसके लिए आपको बुक वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो बुक वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 लाख माइनस 20,000 80,000 हो गई बुक वैल्यू, तो 10,000 आ गया लॉस ऑन से। सिर्फ इस चीज के लिए वो दी रहती है इन्फॉर्मेशन। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि मेथड कौन सी फॉलो होगी। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन मेथड तभी फॉलो होगी जब आपको एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का ओपनिंग और क्लोजिंग दिया रहे, अदरवाइज सिंपल मेथड रहेगी। सिंपल मेथड में सिर्फ और सिर्फ एसेट का अकाउंट बनेगा, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट बनेगा ही नहीं। और जब आप सिंपल एसेट का अकाउंट बना रहे हो तो उसमें ये याद रखना कि क्रेडिट साइड पे डेप्रिसिएशन आता है। अब या तो वो डेप्रिसिएशन आपको डायरेक्टली दिया रहेगा तो आप डायरेक्टली लिख देंगे, नहीं दिया रहेगा तो जो आपको बैलेंसिंग फिगर मिलेगा वो डेप्रिसिएशन रहेगा। और अगर आपको डेप्रिसिएशन डायरेक्टली दिया तो आपको जो बैलेंसिंग फिगर मिलेगा वो डेबिट साइड पे मिलेगा और वो परचेज रहेगा, ठीक है। और सेलिंग के लिए यूजुअली इंफॉर्मेशन दी रहती है क्वेश्चन में कि कितने में सेल किया, और वो जिस अमाउंट में हमने सेल किया वो हमारा आ जाता है बाय बैंक अकाउंट, ठीक है। ब्रैकेट में आप सेल लिख सकते हैं, वो हमारा आ जाता है, ठीक है। और प्रॉफिट या लॉस ऑन सेल जो रहता है वो भी हम दिखाते हैं, प्रॉफिट है तो डेबिट साइड पे, लॉस है तो क्रेडिट साइड पे। और फिर जो चीज हमने यहाँ टू प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट में चार्ज की
ओके, विच वॉज द एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन ऑन द पार्ट सोल्ड। तो वही चीज हमारी प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट में आ जाएगी बाय एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 20,000, हमारे एग्जाम्पल के हिसाब से 20,000 आना चाहिए, ठीक है, वो चीज यहाँ आ गई। उसके अलावा बाकी चीजें सेम ही है, ठीक है, बाकी चीजें सेम है। आपके पास ओपनिंग बैलेंस, क्लोजिंग बैलेंस, सेल का आपको दिया रहेगा वो आप लिख दोगे, और फिर आपको जो यहाँ पे बैलेंसिंग फिगर मिलेगा डेबिट साइड पे वो परचेज हो जाएगा, ठीक है। और ये बात याद रखना कि मोस्ट ऑफ द केसेस में आपको सेलिंग की इंफॉर्मेशन दी रहेगी, तो आपको दो चीजें दिमाग में रखनी है कि अगर आपको बैलेंसिंग फिगर क्रेडिट साइड पे मिल रहा है, ठीक है, और सिंपल मेथड फॉलो हो रही है डेप्रिसिएशन की, तो जो बैलेंसिंग फिगर आपको मिलेगा क्रेडिट साइड पे वो हमेशा रहेगा डेप्रिसिएशन, और अगर डेबिट साइड पे मिल रहा है तो वो रहेगा परचेज, ठीक है। बहुत बहुत रेयर केस में ये हो सकता है कि आपको डेप्रिसिएशन दिया रहे, आपको परचेज भी दिया रहे, या हो सकता है परचेज हो ही ना, तो इसीलिए ये हो सकता है कि आपको बैलेंसिंग फिगर क्रेडिट साइड पे मिले और वो सेल रहे। और वो कब होगा, जब आपको सेलिंग प्राइस है ना क्वेश्चन में दी ही ना हो, या आप फिगर आउट ही ना कर पाओ सेलिंग प्राइस, तो उस केस में आपका जो बैलेंसिंग फिगर होगा क्रेडिट साइड पे वो सेल हो जाएगा। मतलब द पॉइंट इज कि आपको जो इंफॉर्मेशन दी गई है आपको यूज करना है वो इंफॉर्मेशन टू फाइंड दैट इंफॉर्मेशन विच इज नॉट गिवन। तो जो जो दिया है वो आपको लिख देना है, फिर आपको देखना है कि बैलेंसिंग फिगर किस साइड पे आ रहा है, ठीक है। अगर डेबिट पे आ रहा है तो वो परचेज ही होगा, अगर क्रेडिट पे आ रहा है तो वो डेप्रिसिएशन ही होगा, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर, and with this we are done with cash flow from investing activities. Now I will explain you cash flow from financing activities. Cash flow from financing activities is the simplest, okay, because इसमें हमें कोई भी लेजर अकाउंट प्रिपेयर नहीं करना पड़ता है, ठीक है। ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में भी हमें लेजर अकाउंट प्रिपेयर करना पड़ सकता है, जैसा मैंने आपको बोला, अगर आपको डेप्रिसिएशन ना दिया हो, और अगर जो हमारा बैलेंसिंग फिगर निकल रहा है कोई एसेट के अकाउंट में से अगर वो डेप्रिसिएशन निकल रहा है, तो हमें वो प्रिपेयर करना पड़ेगा टू फाइंड कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज एज वेल, क्योंकि हम डेप्रिसिएशन को ऐड बैक करते हैं एनपीबीटी में, ठीक है, यहाँ हम ऐड बैक कर देते हैं, तो इसीलिए हमें प्रिपेयर करना पड़ेगा। तो जब आप इस पे क्वेश्चंस करोगे ना तो आपको खुद ही चीजें क्लियर होने लग जाएगी, ओके। तो फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में क्या क्या आएगा, प्रोसीड्स फ्रॉम इशू ऑफ शेयर्स, ठीक है, इक्विटी शेयर्स या प्रेफरेंस शेयर्स अगर वो इंक्रीज हो रहे हैं प्रीवियस ईयर से, तो दैट मीन्स न्यू शेयर्स और डिबेंचर्स आर बीइंग इशूड, न्यू शेयर्स और डिबेंचर्स और दे आर बीइंग इशूड, तो हम दिखा देंगे प्रोसीड्स फ्रॉम इशू ऑफ शेयर्स और डिबेंचर्स व्हाटएवर, दैट विल बी इनफ्लो ऑफ कैश, तो पॉजिटिव अमाउंट में दिखेगा। उसके बाद अगर आपका सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व इंक्रीज हो रहा है, दैट विल आल्सो गो अंडर फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। क्यों, क्योंकि हम सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व किस पे रिसीव करते हैं, सिक्योरिटीज प्रीमियम हम किस पे रिसीव करते हैं, जो हम शेयर्स इशू कर रहे हैं, डिबेंचर्स इशू कर रहे हैं, अगर वो प्रीमियम पे इशू है तो हमें तब मिलता है, ठीक है, तो दैट कम्स फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज, राइट। तो इसीलिए अगर वो हमारा इंक्रीज हो रहा है तो उसको भी हम शो कर देते हैं फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में, ठीक है। और वैसे ही अगर आप कहीं से लोन ले रहे हो, लॉन्ग टर्म बोरिंग्स में अगर इंक्रीज हो रहा है, बैंक लोन, ओवरड्राफ्ट, कैश क्रेडिट, ठीक है, ओवरड्राफ्ट और कैश क्रेडिट भी एक तरीके का लोन ही होता है, एक तरीके का हमने क्रेडिट लिया हुआ है, ठीक है, तो उससे भी हमारा इनफ्लो होता है कैश का, तो वो भी हम पॉजिटिव अमाउंट के जैसा शो करता है, यानी हम ऐड करते हैं उसको फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में, ठीक है। इसके बाद अगर हम जो भी चीजें पे करते हैं, जैसे डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स हो गया, इंटरेस्ट पेड ऑन डिबेंचर्स, इंटरेस्ट पेड ऑन लोन, डिविडेंड पेड, ठीक है, डिविडेंड पेड ऑन इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर, ये सब चीजें हम सब्ट्रैक्ट करते हैं, ठीक है, क्योंकि ये हमारा एक्सपेंस है और ये हमारा फाइनेंस एक्सपेंस है, ठीक है। तो ये सारी चीजें हम यहाँ पे जो है लेस कर देते हैं, और फिर हमें आखिरी में मिल जाता है कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। अब इंपॉर्टेंट चीजें जो आपको याद रखनी है वो ये है कि अंडर राइटिंग कमीशन जो आपको दिया हो, ठीक है, सॉरी, अंडर राइटिंग कमीशन या प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स या प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ शेयर्स, ये सारी चीजें जो है ये सब आपको लेस करना है, आपको याद रखना है कि ये फाइनेंसिंग एक्टिविटीज है, ठीक है। और कई बार क्या होता है, आपको एक चीज क्वेश्चन में ये दी जा सकती है कि आपको सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व दिया रहे,
ठीक है। और आपको वर्किंग नोट में या तो ये मतलब आपको एडजस्टमेंट में ये दिया रहे कि जो हमारा अंडर राइटिंग कमीशन था वो हमने सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व में से लेस किया, ठीक है। सो इफ दैट इज द केस तो आप क्या करोगे, जो यहाँ पे आपका रिसीट ऑफ सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व है, ठीक है, रिसीट ऑफ सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व, ये आप ज्यादा अमाउंट से दिखाओगे, ठीक है। मतलब जितना भी अंडर राइटिंग कमीशन आपने राइट ऑफ कर दिया था, ठीक है, वो तो हम एंड ऑफ द ईयर में राइट ऑफ करते हैं, ठीक है। राइट ऑफ करना यानी कि हमने उसमें से लेस कर दिया, कम कर दिया। इसका मतलब क्या है, हमें प्रीमियम रिसीव ज्यादा हुआ था साल में, लेकिन हमने कुछ प्रीमियम को राइट ऑफ कर दिया, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हम वो अमाउंट, लेट्स से कि आपको एडजस्टमेंट में ये लाइन दी हो कि शेयर इशू एक्सपेंसेस या फिर अंडर राइटिंग कमीशन ऑफ ₹15,000 वॉज रिटर्न ऑफ फ्रॉम सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व। तो आप क्या करोगे, आपका जो इंक्रीज रहेगा ना सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व में, ठीक है, आप उसमें ना 15,000 और ऐड कर दोगे। सपोज अगर आपका 25,000 का जो है इंक्रीज हो रहा हो, प्रीवियस ईयर में आपका वो 1 लाख, इस साल है आपका 1,25,000, तो 25,000 से आपका सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व इंक्रीज हो रहा है, यानी 25,000 आपको इस साल रिसीव हुआ। लेकिन एडजस्टमेंट में दिया है कि 15,000 आप कम कर चुके हो उसमें से, तो आप क्या करोगे, आप 15,000 ऐड करोगे। तो यहाँ पे रिसीट ऑफ सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व में आप क्या दिखाओगे, 25,000 प्लस 15,000 यानी 40,000 का अमाउंट दिखाओगे, और प्लस वो जो अंडर राइटिंग कमीशन या फिर शेयर इशू एक्सपेंस है वो आप अलग से दिखाओगे, ठीक है। तो आपको ऐसा अलग से क्लासिफाई करके आपको प्रॉपर चीजें दिखानी है, ठीक है। तो ये एक ट्रीटमेंट आपको करना पड़ेगा, ठीक है। इसके अलावा एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि अगर आपको ये स्पेसिफाई कर दिया हो कि अंडर राइटिंग कमीशन वॉज रिटर्न ऑफ फ्रॉम सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व, इन दैट केस आप उसको एनपीबीटी में ऐड नहीं करोगे, ठीक है। क्यों ऐड नहीं करोगे, क्योंकि एनपीबीटी में हम ऐड क्यों करते हैं, सबसे पहला मैंने आपको जो लॉजिक बताया था स्टार्टिंग में, हम ऐड इसीलिए करते हैं क्योंकि हम उसको डेबिट कर चुके होते हैं स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल में, ठीक है। जैसे कि जो हमारा जो भी एक्सपेंस हो गए फाइनेंस के, हम उसको डेबिट कर देते हैं पी एंड एल अकाउंट में, ठीक है। लेकिन वो क्योंकि हमारा ऑपरेटिंग एक्टिविटी नहीं है, वो हमारा फाइनेंसिंग एक्टिविटी है, तो इसीलिए हम प्रॉफिट जो लेते हैं साल का उसमें से हम हटा देते हैं ये फाइनेंस एक्सपेंस को इन ऑर्डर टू फाइंड द कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, तो हम हटाते हैं। लेकिन अगर हमने उसको स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल में डेबिट ही नहीं किया तो हम हटाए क्यों, ठीक है। वो तो ऑलरेडी हटा हुआ है ना, वो तो हमने डेबिट ही नहीं किया, हमने तो सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व में से उसको राइट ऑफ कर दिया। मतलब स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल में तो हमारा उसका इफेक्ट गया ही नहीं, मतलब नेट प्रॉफिट हमारा उससे इफेक्ट हुआ ही नहीं, तो हम एड बैक क्यों करें। तो उस केस में आप यहाँ पे उसको एड बैक नहीं करोगे, उसका इफेक्ट सिर्फ और सिर्फ फाइनेंसिंग एक्टिविटी में जाएगा, वो भी जैसा मैंने आपको बताया कि वो प्रीमियम में भी ऐड हो जाएगा पहले और फिर आप उसको अलग से दिखाओगे, ठीक है। तो ये आपको थोड़ा ध्यान में रखना पड़ेगा। अब अगर आपको कुछ स्पेसिफाई नहीं किया, ठीक है, कि कहाँ से राइट ऑफ हुआ, तो आपको मानना है कि वो स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल से राइट ऑफ हुआ है, तो आप एड बैक भी करोगे यहाँ, और आप जो हो सिर्फ और सिर्फ उसको अंडर राइटिंग कमीशन दिखा दोगे अलग से, आप प्रीमियम में सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व में कुछ ऐड नहीं करोगे, ठीक है। या फिर आपको हो सकता है वो क्लियरली स्पेसिफाई ही कर दे कि स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल में से राइट ऑफ हुई थी ये चीज, ठीक है। या फिर एक क्वेश्चन मैंने ऐसा भी देखा था कि उन्होंने ये बोला था कि दिस अंडर राइटिंग कमीशन इट वॉज रिटर्न ऑफ फ्रॉम जनरल रिजर्व। अगर जनरल रिजर्व से राइट ऑफ हुआ है तो क्या होगा, तो हम जब एनपीबीटी निकालते हैं तो हम जो हमारा ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व या कोई भी रिजर्व में जो हम ट्रांसफर करते हैं वो हम ऐड करते हैं एनपीबीटी निकालने के लिए, राइट। तो जब आप वहां पे जनरल रिजर्व ऐड करोगे ना, तो उसमें आप वो अमाउंट भी ऐड करोगे जो हमने जनरल रिजर्व से राइट ऑफ कर दिया यानी कम कर दिया था, तो उसको आप और ऐड बैक करोगे। आई होप यू गेट इट। तो वहां पे उसका ट्रीटमेंट जाएगा, ठीक है। अलावा हमारे 2-3 आइटम और रह गए थे, जैसे कि हमारा रीपेमेंट ऑफ लोन। तो रीपेमेंट ऑफ लोन जो है वो अगेन आउटफ्लो ऑफ कैश है, तो वो हम लेस कर देते हैं। वैसे ही रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स या फिर प्रेफरेंस शेयर्स दैट इज ऑल्सो एन आउटफ्लो ऑफ कैश, तो दैट ऑल्सो वी सबट्रैक्ट, ठीक है। अब ये बात याद रखना कि रिडेम्पशन या तो डिबेंचर्स का या तो प्रेफरेंस शेयर्स का होगा, इक्विटी शेयर्स का कभी रिडेम्पशन होगा ही नहीं, क्योंकि इक्विटी शेयर्स जो है वो दे आर नॉट रिडीमेबल, दे आर रिडीमेबल ओनली एट द एंड ऑफ द लाइफ ऑफ द कंपनी, ठीक है। तो ये सब चीज़ें मैंने आपको बता दी कि फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ में क्या ऐड होता है और क्या लेस होता है।
अब एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जो इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स होता है हमारा, वो हमारा चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होता है, राइट? उसका मतलब क्या? इसका मतलब ये कि भले हमारे पास प्रॉफिट हो, लॉस हो या कुछ भी हो, और भले हमें इंफॉर्मेशन में, क्वेश्चन में हमें दिया हो या ना दिया हो, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स हमें पे करना ही पड़ता है, बिकॉज इट्स अ थर्ड पार्टी लायबिलिटी। ठीक है? तो इसीलिए हमारा जो डिबेंचर्स होता है उसमें हमारा स्पेसिफाइड होता है ऑलरेडी रेट ऑफ इंटरेस्ट, जैसे कि आपको दिया ही रहता है 12% डिबेंचर्स, 10% डिबेंचर्स। तो वो जो भी आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया रहता है 12% या 10% या जो भी, तो वो आपको खुद से निकालना पड़ता है। मे बी आपको वो एडजस्टमेंट में दे सकते हैं कि दिस अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट वॉज पेड ऑन डिबेंचर्स ड्यूरिंग द ईयर, तो अगर वो दिया हो तो ठीक है, अदरवाइज आपको खुद कैलकुलेट करना पड़ेगा, क्योंकि वो पे होना ही है बाय डिफॉल्ट। हम ये अज्यूम करते हैं कि हमने पे किया है, तो इवन इफ इट इज नॉट मेंशन्ड इन द क्वेश्चन, यू नीड टू कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स, बिकॉज इट इज अ फिक्स्ड एक्सपेंस ऑफ द कंपनी। ठीक है? और आप, अगर आपको कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी हो, तो इन द एब्सेंस ऑफ इन्फॉर्मेशन यू ऑलवेज कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स ऑन द ओपनिंग बैलेंस। लेकिन अगर आपको क्वेश्चन में स्पेसिफाई ये कर दिया जाए कि जो हमारे डिबेंचर्स है वो न्यू डिबेंचर्स या तो इशू हो रहा है, या डिबेंचर्स जो है पुराने वाले वो रिडीम हो रहे हैं, एंड इफ दे आर बीइंग इशूड ऑन रिडीम्ड ऑन अ स्पेसिफिक डेट, और वो डेट आपको दी हुई है क्वेश्चन में, तो आपको इंटरेस्ट फिर उस डेट के हिसाब से कैलकुलेट करना पड़ता है। ओके? फॉर एग्जाम्पल, अगर 1 जनवरी को न्यू डिबेंचर्स इशू हुए हैं, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब फर्स्ट डिबेंचर्स तक जो हमारा डिबेंचर्स का काउंट था वो अलग था, और फर्स्ट जनवरी को हमारे डिबेंचर्स बढ़ गए, राइट? तो इस केस में हम क्या करेंगे? इस केस में हम 1 जनवरी तक जो है ओपनिंग बैलेंस पे इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे डिबेंचर्स के। ठीक है? मतलब जो 9 मंथ्स हो गए, अप्रैल से लेके जनवरी तक जो हमारे 9 मंथ्स हुए, तो हम 9 मंथ्स के लिए ओपनिंग बैलेंस ऑफ डिबेंचर्स पे जो है इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे, और फिर जो बचे हुए 3 मंथ्स है, जनवरी, फरवरी, मार्च, तो 3 मंथ्स के लिए हम क्लोजिंग बैलेंस पे जो है डिबेंचर्स सॉरी इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे डिबेंचर्स पे। ठीक है? ये हमारा प्रोसीजर हो जाएगा। अब हम आते हैं डिविडेंड पे। तो डिविडेंड का ये है कि डिविडेंड इज पेड आउट ऑफ प्रॉफिट। ठीक है? तो डिविडेंड जो है वो हमारा चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट नहीं होता है, वो हमारा होता है एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। ठीक है? तो डिविडेंड हम तभी पे करते हैं जब हमारे पास प्रॉफिट हो। तो अब आपको ये तो नहीं मालूम रहेगा कि मतलब अनलेस इट इज मेंशन इन द क्वेश्चन, आप ये अज्यूम नहीं कर सकते कि इक्विटी शेयर्स पे कितना डिविडेंड पे हुआ है, क्योंकि इक्विटी शेयर्स पे हमारे पास फिक्स्ड परसेंटेज नहीं होता है। तो या तो वो लोग आपको स्पेसिफाई कर देंगे, या वो लोग आपको प्रपोज डिविडेंड्स दे देंगे लास्ट ईयर का और इस ईयर का। तो जो लास्ट ईयर का प्रपोज डिविडेंड है वो हमारा डिविडेंड पेड हो जाएगा इस साल। ठीक है? तो वो हमारा डिविडेंड पेड और इक्विटी शेयर्स वहां से आ जाएगा। या फिर दूसरी चीज ये हो सकती है कि वो आपको स्पेसिफाई कर देंगे कि इस साल इतना परसेंट पे हमने इंटरिम डिविडेंड पे किया या व्हाट्सोएवर। तो पॉइंट ये है कि अगर इक्विटी शेयर्स पे किसी भी तरीके का डिविडेंड पे हुआ है, वेदर इट इज प्रीवियस ईयर्स प्रपोज डिविडेंड, वेदर इट इज इंटरिम डिविडेंड, अगर वो पे हुआ है तो डेफिनेटली प्रेफरेंस शेयर्स पे भी डिविडेंड पे होगा। क्योंकि प्रेफरेंस शेयर्स क्या होते हैं? प्रेफरेंस शेयर्स हमें मालूम है दे कैरी सम प्रेफरेंशियल राइट्स। इसका मतलब ये है कि पहले हमेशा जो भी प्रॉफिट होता है कंपनी का, उसमें से पहले प्रेफरेंस शेयर्स पे डिविडेंड पे होता है, उसके बाद एकदम आखिरी में इक्विटी शेयर्स पे होता है। ठीक है? तो इसीलिए ऑब्वियस सी बात है कि अगर हमें क्वेश्चन में कहीं से भी ये पता चल रहा है कि इक्विटी शेयर्स पे डिविडेंड पे हुआ है, तो हम ये मानेंगे कि प्रेफरेंस शेयर्स पे भी डिविडेंड पे हुआ है। अब हो सकता है कि वो क्वेश्चन में आपको दे दिया जाए कि प्रेफरेंस शेयर्स पे डिविडेंड पे हुआ था, और हो सकता है कि वो स्पेसिफाई नहीं करे। लेकिन इफ इट इज नॉट स्पेसिफाइड, और अगर क्वेश्चन में हमें कहीं से भी पता चल रहा है कि इक्विटी शेयर्स पे कोई भी तरीके का डिविडेंड पे हुआ है, तो हमें खुद से प्रेफरेंस डिविडेंड भी निकालना पड़ेगा, क्योंकि प्रेफरेंस शेयर्स में भी हमें परसेंट दिया होता है। ठीक है? 10% प्रेफरेंस शेयर्स, 8% प्रेफरेंस शेयर्स, व्हाटएवर। ओके? तो वो हमें निकाल लेना पड़ेगा अगेन ऑन द ओपनिंग बैलेंस। अब हम बाय डिफॉल्ट ओपनिंग बैलेंस पे कैलकुलेट करते हैं, भले ही वो इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स हो या प्रेफरेंस डिविडेंड हो। लेकिन अगर हमें क्वेश्चन में ये स्पेसिफाई कर दिया जाए कि जो हमारे न्यू प्रेफरेंस शेयर्स है दे वर इशूड ऑन 1 अप्रैल 2021, लेट्स से कि हमारा प्रीवियस ईयर जो है वो 2021 था, मतलब 31 मार्च 2021, और ये साल हमारा है, करंट ईयर है 31 मार्च 2022।
ठीक है। तो अगर हमें ये दे दिया जाए कि ओपनिंग डे पे ही अगर हमने न्यू शेयर्स या न्यू डिबेंचर्स इशू कर दिए, यानी कि हमारे 1 अप्रैल 2021 को ही अगर हमारे न्यू शेयर्स या डिबेंचर्स इशू हो गए या डिबेंचर्स और शेयर्स रिडीम हो गए, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब जो भी हमारा कम या ज़्यादा होना था शेयर्स का या डिबेंचर्स का, वो स्टार्टिंग में ही हो गया है। ठीक है। तो इन दैट केस हम लोग क्लोजिंग बैलेंस पे जो है कैलकुलेट करते हैं इंटरेस्ट या फिर डिविडेंड। तो ये थोड़ा सा समझने की बात है। इसी के साथ आई गेस ये टॉपिक पूरा हमारा कवर हो चुका है बहुत अच्छे से, और आपको अभी कोई भी डाउट होना नहीं चाहिए इसमें, क्योंकि जो भी थोड़ी बहुत लॉजिक की बात आती है कहीं पे या कुछ भी थोड़ा सा घुमा फिरा के क्वेश्चन में दिया जाता है, तो मैंने वो सभी पॉइंट्स, वो सभी सिचुएशंस मैंने आपकी कवर कर दी है इस वीडियो में। तो हमारा कैश फ्लो स्टेटमेंट जो है वो पूरा 100% कवर हो गया है हर तरीके से। तो आई जस्ट विश कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा और आपको बहुत हेल्प मिली इससे, क्योंकि मैंने बहुत अच्छे से स्टडी करके और आई हैव ट्राइड माई बेस्ट टू नॉट टू लीव एनी पॉइंट। एंड तो आप मुझे प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। एंड आई होप दैट यू हैव सब्सक्राइब्ड माई चैनल, एंड इफ नॉट प्लीज़ डू सब्सक्राइब। तो बाय बाय, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।